Hello everyone, welcome to my channel. This is Nidhi Gupta and today we will be discussing the difference between human resource management and personal management. As we already know that personal management is the administrative specialization that focuses on hiring and developing of the employees to become more valuable to their organizations where they are already working. And it is sometimes considered to be a subcategory of human resources that only focuses on administrations. So we at times use this personal management and human resource management interchangeably, but there is always a thin line difference between these two terms. So let's understand that thin line difference between these two with the help of one story. And I think you are the hero of that story, so let's begin with that. Suppose you have recently completed your job and nowadays you are trying to identify some organizations from where you can start your career. So you have already identified 2-3 organizations, good organizations, and now you are thinking to find out the inside story of each organization, how they are working, what kind of environment they are having, how they are motivating their employees, and what is the compensation everyone is getting there. So you are having these type of questions popping in your mind. So fortunately you come to know that few of your friends are working already in those organizations, so you think to call up them and to take some information from them about the organization. तो आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन ए में जो आपका फ्रेंड सपोज somebody is working there, तो आप उनको कॉल करते हो and you ask him that tell me about the organization, are you happy there or not. So your friend tells you that yes, I am working in organization A, I am getting this much of salary there, which is as per the industry up to the mark, and everyone at my profile is getting the same salary in the entire industry. At times I am getting some training opportunities in the organization, and my boss is very strict with me, and he always monitor all my activities and all the activities of all the employees working. So there is a very tight monitoring in the organization, and everybody has to follow the rules and procedures in my organization very strictly. Everybody has to adhere to all the customs, norms, procedures, and my boss is very strict. He always gives us instruction and we have to obey and follow all the instructions. So उससे बात करने के बाद आपको लगता है, आप उसको पूछते हैं कि ओके, इफ यू गेट द चांस टू स्विच ओवर द जॉब, विल यू. तो वो कहता है, आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि यस, इफ इन फ्यूचर आई गेट द चांस टू स्विच माई जॉब, आई विल डेफिनेटली स्विच इट. सो ओके, उससे बात करने के बाद यू थिंक दैट यहाँ पे तो बड़ा डीमोटिवेटिंग सा एनवायरनमेंट है और इतने टाइट शेड्यूल है, इतना क्लोज मॉनिटरिंग है, और कॉम्पनसेशन भी जो है वो एज पर द इंडस्ट्री है, बट अगर कोई बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो लाइक दैट. देन यू कॉल योर अनदर फ्रेंड हु इज़ वर्किंग इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बाई यू. अब उससे आप बात करते हैं और एंड यू आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू दैट फ्रेंड ऑल्सो. Then your friend replied, yes, I am very happy working in organization B, and my salary is very good there, and if I perform very effectively in the organization, I get extra reward for that. Non financial rewards are there. My boss always appreciates my working, and he is very positive for all the employees. He is not acting as a boss, he's acting as a guide, mentor, coach for all of us, and he always discuss all the things with us. He always involve us in decision making, and जहाँ पे भी हमारी कोई weaknesses होती हैं वो हमें बताते हैं कि हम उनको कैसे जो है overcome कर सकते हैं, और अपने कैरियर में जो हमें बहुत सारी opportunities है जो organization देती है. At times organization understand our problems too. तो ये जो है बहुत पॉजिटिव मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो मुझे अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं आगे. तो ऐसे करके उसने आपको बताया. देन आपने उससे पूछा कि इफ़ यू गेट द चांस टू स्विच ओवर योर जॉब, विल यू. तो ही सेड नहीं, आई एम वेरी हैप्पी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वांट टू बी रिटेन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस वाज द सिनेरियो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बी विच यू कम टू नो विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड.
Now, when you are comparing the organization A with organization B, you have to choose one, and definitely I think 100% लोग आपकी तरह और मेरी तरह will choose organization B, because you know organization B is more employee friendly. तो हमें सबको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन बी जो है वो एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमें काम करना चाहिए. अब ऐसा क्यों हमें लगा, यही एक डिफरेंस है पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बीच में. बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन ए है, जो रूल्स पे प्रोसीजर्स पे पूरा उनको फॉलो करने में ही और मॉनिटरिंग में ही अपना सारा फोकस रख रही है, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बिलीविंग इन पर्सनल मैनेजमेंट रादर देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एंड जो ऑर्गेनाइजेशन बी है, जो एम्प्लॉयज को नर्चर कर रही है, गाइड कर रही है, उनकी इफेक्टिव परफॉर्मेंस में उनको रिवॉर्ड दे रही है, और वहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं है, वहाँ पे टीम वर्क है, तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉलो करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है. बिकॉज जहाँ पे भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉलो होता है वहाँ पर हमें हमेशा एक कोट में बिलीव करते हैं जो ये कहता है, टुगेदर वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल. तो हम टीम वर्क में बिलीव कर रहे हैं, तो टुगेदर वी कैन अचीव मोर एंड मोर. सो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है जहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं, नर्चरिंग है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टोरी आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट इज क्लियर to all of you. Now let's begin with the differences between these two. So number one difference is the contract. In personal management, it is careful delineation of written contract. That means whatever is written in the contract, we have to follow just those, like all the terms and conditions mentioned in the contract. Employee को भी वही follow करना है, employer भी वही follow करता है. Wherein if we talk about the human resource management, it is aimed to be beyond contract. That means अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ओके एम्प्लॉय को इतना काम करना है और उसको उसके अकॉर्डिंगली इतना कॉम्पनसेशन मिलेगा, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत इफेक्टिव काम कर रहा है, बहुत स्किल्ड है और बहुत ही उसके अंदर पोटेंशियल है डेवलप होने का, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको आगे ग्रोथ के लिए चांस दे रही है, उसको जो है आगे और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई, जो कि एक्चुअली रिटन कॉन्ट्रैक्ट में कहीं मेंशन नहीं है कि हम ऐसा कुछ आपको आगे देने वाले हैं. बट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज यू नो जस्ट बाय ऑब्जर्विंग हिज पोटेंशियल इट इज प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू द इंडिविजुअल. तो ये बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट भी जा रही है ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन इट इज बिलीविंग इन दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग एंड गिविंग चांस टू ग्रो मोर. तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है जो कि पर्सनल मैनेजमेंट में हमें नहीं देखने के लिए मिलता. Now the second difference is in philosophy. In personal management, we believe that employees are made for rules and regulations, and they are bound to follow those only. They cannot go beyond those rules. They have to strictly adhere to those rules and regulations. Wherein human resource management believes that rules and regulations are made for employees. So कहीं पे कभी कोई flexibility चाहिए या कुछ ऐसे rules हैं जो हमें reformulate करने पड़ेंगे as per the need of the employee, तो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, हम वो कर सकते हैं. लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट में जो भी रूल्स हैं हमें उन्हीं के अकॉर्डिंगली काम करना है, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते. थर्ड इज गाइड टू मैनेजमेंट एक्शन. इट इज इन पर्सनल मैनेजमेंट द क्लियर रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर देयर विच आर नीड टू बी फॉलोड बाय एवरीवन. वी हैव टू स्ट्रिक्टली अडहेयर टू दोज. And in human resource management it can be changed as per the business need. तो अगर business की need है जिसके हिसाब से कुछ management actions हमें change करने हैं या हमें जो अपना plan of action है वो reformulate करना है और कुछ decisions अपने change करने हैं, तो human resource management जहाँ पर भी जिस organization में applicable है वहाँ पर हम ये कर सकते हैं. But personal management में ये नहीं होता. Then behavior. In personal management it depends on again norms and customs. So जो भी आपके norms और customs कहेंगे आपका behavior उन्हीं के accordingly ही काम करेगा. You cannot be flexible in your behavior, you cannot change that. But in human resource management we focus on values.
values of the organization, values of the individuals working in the organization, and we are working towards the mission of the organization. तो हम customs और norms के beyond जो एक shared mission है उसके लिए सब काम कर रहे होते हैं. तो जो बिहेवियर है वो मिशन ओरिएंटेड होता है, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को अचीव कर पाएं. देन द नेक्स्ट इज मैनेजरियल टास्क. अब क्योंकि पर्सनल मैनेजमेंट में हम बार बार बात कर रहे हैं रूल्स नहीं ब्रेक करने, रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, कस्टम्स फॉलो करने हैं, नॉर्म्स फॉलो करने हैं, तो द वर्क ऑफ द मैनेजर, सुपीरियर और द सुपरवाइजर इज ओनली टू मॉनिटर द एम्प्लॉयज whether they are following the rules or not, who is breaking the rule, who is not obeying the instructions and all. So instead of involving in making a strategy and working for the growth of the organization, the supervisor and the managerial position people, they are involved in monitoring of the employee in personal management, wherein human resource management gives the opportunity to nurture their subordinates to the managers. तो वहाँ पर मैनेजर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने सबॉर्डिनेट्स को नर्चर कर पाएँ, उनको गाइड कर पाएँ, उनकी कहीं पे जो प्रोग्रेस में कहीं कोई ऑब्स्टेकल आ रही है उसको दूर कर पाए. तो इंस्टेड ऑफ मॉनिटरिंग देम कि हम उनको क्लोजली सुपरवाइज कर रहे हैं, वी आर कीपिंग अ चेक ऑन देम एवरी टाइम एंड वी हैव द कॉन्स्टेंट आई ऑन देम. नो, हमें उनको नर्चर करना है, हमें उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना है, गाइड करना है, उनको मेंटोर करना है. तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैनेजरियल टास्क होता है. Next is nature of relationship. In personal management, it is pluralist. Pluralist means you may have 2, 3 or multiple bosses to whom you need to report. तो आपको जो है वो कई बॉसेस को, बिकॉज जब पर्सनल मैनेजमेंट में आप रूल्स फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे एक लंबी हायरार्की भी हो सकती है, तो आपको मल्टीपल बॉसेस को रिपोर्ट करना हो सकता है, उन सबकी इंस्ट्रक्शंस आपके पास आएंगी, उनको आपको फॉलो करना हो सकता है. तो इट मे बी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर ऑल द एम्प्लॉयज. But in human resource management, the nature of relations is unitarist. That means the single boss. So you have to report to your immediate boss and you have to follow his instruction only. तो वहाँ पे एक बहुत ही relaxed environment में आप काम कर रहे होते हो. Single boss है जिसको आपको report करना है, छोटे छोटे teams हैं जिनमें हम काम करते हैं. तो ये एक positive relation, एक positive interpersonal behavior भी develop करता है in the organization between the boss and the subordinate. Then next is speed of decision. In personal management, it is slow, as I have already told you, because the nature of relation which I have told you, it is pluralist. तो जब multiple bosses होते हैं तो आपको सबकी consent लेनी है किसी भी decision में, तो automatically it may take time. तो decision making की जो speed है वो slow हो जाएगी. Wherein human resource management, the speed of decision making is fast, because unitarist approach है, single boss है, आपको कुछ भी discuss करना है, आप गए, एक इंस्ट्रक्शन क्विकली डिसाइड हुई और इम्प्लीमेंट हो गई. देन की रिलेशंस. पर्सनल मैनेजमेंट में लेबर मैनेजमेंट है. जैसे मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन ए का एग्जांपल दिया, जहाँ आपके एक फ्रेंड काम करता है और उसने बताया वहाँ पर कि मुझे कॉम्पनसेशन मिलता है जितना मैं काम करता हूँ, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, मेरा बॉस मुझे स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है, और मेरा बॉस ऑटोक्रेटिक है, मुझे इंस्ट्रक्शंस देता है, मैं उसको कुछ भी एडवाइस नहीं कर सकता. तो एट टाइम्स आई फील दैट आई एम वर्किंग एज अ लेबर, जिसको जो है क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, कितना नहीं कर रहा. तो ऐसा एक फीलिंग है जो एम्प्लॉयज को आ सकता है पर्सनल मैनेजमेंट में. वेर इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रीट्स द एम्प्लॉयज लाइक customers. Here, audience, I would like to add that all the employees are the internal customers of the organization. तो उनको मोटिवेटेड रखना, सेटिस्फाइड रखना, कंटेंटेड रखना, हैप्पी रखना, ये ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है. तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होंगे, कंटेंटेड होंगे, तो डेफिनेटली वो उतना अच्छा आउटपुट देंगे, उतना मैक्सिमम प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, उनका प्रोडक्टिविटी लेवल भी मैक्सिमम होगा. तो जो इंटरनल कस्टमर है हमारा, जो एम्प्लॉई हमारा है, उसको हमें फोकस में रखना है, उसको खुश रखना है, जो कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में फॉलो करते हैं. वेयर इन पर्सनल मैनेजमेंट इट इज ट्रीटिंग द एम्प्लॉयज एज अ लेबर.
नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन पर्सनल मैनेजमेंट में स्लो और डाउनवर्ड होता है बिकॉज बॉस इज स्ट्रिक्ट, ही इज कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द एम्प्लॉयज, तो इंस्ट्रक्शन टॉप टू बॉटम आ जाती है एंड यू हैव टू ओबे ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस, फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस. एंड स्लो मैंने आपको बताया मल्टीपल बॉसेस होते हैं तो पास होते होते इंफॉर्मेशन नीचे आएगी, तो वो कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है. वेयर इज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द कम्युनिकेशन इज फास्ट एंड इट इज बोथ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड. अगर बॉस ने आपको इंस्ट्रक्शन दी है तो टॉप टू बॉटम आपके पास इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, बट अगर आपको कोई एम्बिग्विटी है उसमें या आपके पास कुछ बेटर सजेशंस है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए कि उस इंस्ट्रक्शन में इम्प्रोवाइजेशन हो सकती है, तो यू आर ऑल्सो अलाउड टू गो टू योर बॉस एंड कन्वे योर इनपुट्स टू हिम. तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है एज एन एम्प्लॉय कि हम अपवर्ड कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, जबकि पर्सनल मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन मोस्टली डाउनवर्ड होता है. यू हैव टू फॉलो वट एवर इंस्ट्रक्शन इज कमिंग योर वे. Next is approach. In personal management, the approach is work oriented. Like you are in the organization to do the work, to complete the task. तो आपसे organization का उतना ही connection है कि आप उनको जो भी काम आपको assign हो रहा है वो आप उन्हें करके दें and for that work you are paid. जबकि HRM जो है, अगर आप HRM की बात करें तो इट इज हैविंग पीपल ओरिएंटेड अप्रोच. सो बियॉन्ड द वर्क आप यू आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू यू, बट यहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच फॉलो होती है जो कि काम के बियॉन्ड भी वर्कर्स को ट्रीट करती है, उनकी हैप्पीनेस का, उनके सेटिस्फेक्शन का, उनकी कैरियर ग्रोथ का, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का, उनकी एस्पिरेशंस का जो है हम इसमें उसको भी फोकस में रखते हैं और कंटिन्यूसली उनको भी हम जो है सारे प्रॉपर्ली ट्रीट करते हैं. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सो इट्स अ पीपल ओरिएंटेड अप्रोच, बिकॉज हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग को मैनेज करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि डायनेमिक है एंड अनप्रिडिक्टेड बिहेवियर भी हो सकता है. तो पीपल ओरिएंटेड अप्रोच को रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ट्रस्ट. Because we are continuously monitoring all the employees, that means we are not trusting them. तो level of trust in personal management is low. अगर हम उन्हें ट्रस्ट करेंगे तो हम उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर नहीं करेंगे, बट हम पर्सनल मैनेजमेंट में उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं. हु इज डूइंग व्हाट, आपने कितना काम कर लिया, कितना बच गया, ये क्यों नहीं किया, लाइक दैट. सो द लेवल ऑफ ट्रस्ट इज लो. एंड जब कोई एम्प्लॉय पे ट्रस्ट नहीं कर रही ऑर्गेनाइजेशन, तो एम्प्लॉय भी ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट नहीं कर पाता. उसको भी लगता है कि जब मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा तो मैं भी कैसे ट्रस्ट करूं, तो जितने भी मेरा कॉम्पनसेशन ड्यू है ये सब मुझे टाइम पे मिलता रहे, कोई भी चीज़ें मेरी पेंडिंग ना रहे, क्योंकि मेरा भी ट्रस्ट लेवल उतना नहीं है. Whereas in human resource management the level of trust is high, because वहाँ पे कोई continuously monitoring नहीं है, कोई close monitoring नहीं हो रही, आपको nurture किया जा रहा है, guide किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो trust है organization के ऊपर वो भी बहुत ज़्यादा है और organization का trust employees पे भी ज़्यादा है. तो level of trust is high in human resource management. Next is management role. It is very important. It is transactional in personal management. That means एक give and take relationship है, ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप है. तो क्या है कि आपको जितना काम असाइन हुआ आप उतना काम हमें करके दे दो और उस काम के अगेंस्ट में हम आपको उतना कॉम्पनसेशन दे देंगे. तो इट्स अ ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप. तो मैनेजमेंट का रोल है कि मैंने आपको ये टास्क दिया, आपने मुझे ये करके दे दिया, दैट्स इट. वेयर इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिलीव्स इन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मीन्स योर mentor, your supervisor, he is actively mentoring you, he is always trying to guide you wherever you are facing any hurdle or obstacle in performing any particular task, and he is trying to improve your weaknesses also. First he is identifying what kind of person you are, what are your strengths and weaknesses, और उसके बाद उनको weaknesses को कैसे overcome करना है, आपके काम में जो flaws है उनको कैसे improve करना है. तो he is acting as a
ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो कि कुछ टाइम के बाद अपने सबॉर्डिनेट की पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर देगा एंड द सबॉर्डिनेट विल बिकम द बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, जो कि पर्सनल मैनेजमेंट में नहीं है. इन पर्सनल मैनेजमेंट वी आर फाइंडिंग द give and take relationship between the management and the employee. The next is pay. In personal management, pay or the compensation is based on the job evaluation. In organization, the job evaluation has been done. That means we have checked the worth of a particular job, and accordingly the grades are fixed for that particular job, and employee is paid accordingly. Now let's assume there are two workers working on a same profile, and one is very effective worker, another one is not. But as per the job evaluation, both are getting the same compensation from the organization. तो क्या होगा, जो इफेक्टिव वर्कर है उसका मोटिवेशन लेवल धीरे धीरे लो होता जाएगा और उसको लगेगा कि मैं ज़्यादा काम भी कर रहा हूँ, अच्छा भी काम कर रहा हूँ, तब भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, तो कुछ ज़्यादा करने पे भी मुझे कोई बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ना तो फाइनेंशियल ना नॉन फाइनेंशियल, मुझे कुछ नहीं मिल रहा. सो व्हाई आई शुड डू दैट? सो मे बी इन फ्यूचर ही स्टॉप्स that. Whereas in human resource management, the pay is performance related. That means if you are the effective worker, you are performing all your tasks efficiently, so your compensation will be based on as per your performance. तो अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है तो आपको according to your performance आपको performance appraisal मिलेगा, आपका हाइक होगा और आपको मे बी प्रमोशन मिले. तो ये सारी चीज़ें जो HRM में हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है कि आपको क्या रिवॉर्ड्स होंगे, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. जबकि पर्सनल मैनेजमेंट में जॉब इवैल्यूएशन हम करते हैं तो वो फिक्स्ड ग्रेड्स होते हैं कि कोई आप अच्छा काम करे तो भी आपकी इतनी सैलरी है, आप ना करें तो भी आपकी इतनी सैलरी है. तो ये एक पर्सनल मैनेजमेंट में एक फॉल्ट है जो हमें लगता है. नाउ आई थिंक we have discussed all the differences between these personal management and human resource management, and I think I am expecting that you have understood the concept and the difference between these two, and I hope you enjoyed this session as well. And now I am ending this session. Here in my last slide I have given some references for this particular topic. The name of few books are mentioned, and I wish you here have a great day. See you soon. Thank you so much.